Very good afternoon to all the inter students out there. As we have started the Jan 26 RTP last week for the May 26 exams, so we will be continuing the same today also. So we will be covering few of the questions. So the first question that I am covering today is related to the initial audit engagement, that is the opening balance essay, which is essay number 510. Generally, students find it difficult and they try to avoid this essay, but there is no need to avoid this essay because this is pretty simple. If you want me to cover the entire essay, I can cover that also. So first of all, let's cover the question which has been asked in the ICA for the same. So this is question number 13. If you can see here that Simon Company Chartered Accountant have been appointed as a stat auditor of Delight and Delight Partnership Firm for the first time. So the first thing here that should strike in your mind while reading is that it is the first time audit and the previous year were not subject to audit. So here we have the two cases. First is if there is audit of the previous year which is done, and the second is where the previous year auditor has not been done. So this is related to this case where the previous year audit has not been done. But during the audit, the new auditor noticed the differences in some of the opening balances brought forward from the previous year with respect to the relevant essay. So which essay is this? It should strike in your mind quickly that this is essay number 510. Okay. And the objective of the essay. So if you have revised the essay properly and if you have even read it properly, so that should come into your mind that which essay is it related to. So this is related to the 510, and in the study mat there is a separate para for the same which actually tells us that what are the objectives of the auditor if they are performing the audit for the first time. So there are actually two objectives of the auditor. I will help you to go through the suggested answer also and what are the keywords that you can write in your suggested answer. So the first is whether you should check that whether there are any whether the previous year balance contain anything which can materially impact your current year financial statement. So for example, कुछ भी ऐसा लॉ सूट वगैरह चल रहा है या कुछ भी डेटर है जिसकी रिकवरीज नहीं हो रही है, जिसका अमाउंट बहुत मटेरियल है, तो अगर लास्ट ईयर का ऑडिट नहीं हुआ तो देन यू नीड टू चेक कि जो लास्ट ईयर के हमारे बैलेंसेस थे इफ दे आर इम्पैक्टिंग दिस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली इन अ मटेरियली मिसस्टेटमेंट फॉर्म. एंड अब दूसरा चीज जो है दैट इज नॉट और दैट इज एंड दूसरा चीज हमारे पास क्या है कि जितनी भी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है हम पूरे एएस में यही पढ़ते आ रहे हैं कि दैट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड इन अ रेट्रोस्पेक्टिव मैनर. ओके. So whatever the accounting policies have been followed by the organization, so that should be properly and consistently applied in the current year also. So this is the second part. अब इसमें एक और चेंज है कि अब एक ही सेंटेंस हो गया, उसके बाद आपने लिखना है और इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, सो जो वो चेंजेस हैं दैट शुड बी प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एंड दैट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इतना हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑडिटर का जब उसको ये पता चलता है कि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स जो हमारे हैं वो ऑडिट नहीं हुए. दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑडिट दैट यू विल बी डूइंग. एंड उसके लिए जब भी हम कोई ऐसे स्टार्ट करते हैं तो एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव आता है. तो एसएम में भी वो ऑब्जेक्टिव सबसे ऊपर लिखा होता है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है. ओके. तो जब वो ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है तो एसए 510 का ऑब्जेक्टिव दो ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है कि आपने कोई भी ऐसी चीज जो मटेरियल इंपैक्ट करी है पहले आप उसको इवेलुएट करो. और सेकंड चीज हमारे पास हमने ये देखनी है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हमारे पास है दे आर प्रॉपरली अप्लाइड, कंसिस्टेंटली अप्लाइड. एंड अगेन उसके बाद हमने ये देखना है कि अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस आए हैं तो देन दे शुड बी प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज फॉर. सो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे कीवर्ड्स इसके अंदर नहीं है, इसमें बहुत ही कम कीवर्ड्स हैं. इफ आई गो बैक टू द सजेस्टेड आंसर एंड इफ आई शो यू हियर, so what is this? This is as per the SA 510 initial audit engagement opening balance. So this is how you should start your answer. तो जब आप यहाँ तक लिख दोगे ना तो you are actually giving the confidence to the evaluator कि at least आपको ऐसे properly पता है. उसके बाद आप यहाँ से नीचे से start कर दो कि the objective of the auditor with respect to opening balance is to obtain SAAE. तो ये तो हमारे पास हर जगह है ही ना.
तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने फर्स्ट लाइन में लिखना है एज पर SA 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस, देन लीव अ लाइन एंड देन नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट करो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर रिलेटेड टू द ओपनिंग बैलेंस इज टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट बैलेंसेस रिलेटेड टू। अब जो रिलेटेड टू में आएगा उसमें आपकी दो चीजें आएंगी। प्लीज बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट द प्रेजेंटेशन दैट यू विल बी डूइंग इन योर ऑडिट एग्जाम, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा वो है वेटेज है, जितनी आपकी एक्यूरेसी होगी प्लस जितनी आपकी प्रेजेंटेशन होगी। सो बोथ ऑफ देम विल हेल्प यू टू यू नो गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन योर ऑडिट एग्जाम्स। सो द फर्स्ट इज कि ओपनिंग बैलेंस में कोई भी ऐसी मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जिससे मटेरियल इम्पैक्ट आ रहा है। करंट ईयर मिसस्टेटमेंट एंड, अब either you can write and here or you can write and here and then write the second point. Are you getting my point? कि you write first point and then you can write and then you can start with the second point. So this will help you to make a very good presentation in your exam. सेकेंड चीज हमारे पास आती है appropriate accounting policies reflected in the opening balance have been consistently applied. So what are the keywords here? So the appropriate accounting policies, ये तो हमें पता है, and make sure कि whatever you are writing you should write the first letter in the capital letter, because I have checked one of the answer sheet few days back in which the appropriate का A छोटा था। तो डोंट डू दी सिली मिस्टेक्स इन योर एग्जाम। दोनों की जब आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हो, सो द फर्स्ट लेटर शुड बी द कैपिटल लेटर, ओके। सो उसके बाद हमारे पास आता है कंसिस्टेंटली अप्लाइड इज द सेकंड कीवर्ड इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैं बोल रही थी ना, इसमें और आएगा। जितने भी आपके चेंजेस देयर टू आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड एंड एडवोकेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज। सो फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर्ली अकाउंटेड, सेकंड थिंग इज प्रेजेंटेड एंड द थर्ड थिंग इज डिस्क्लोज। सो APD in accordance with what? In accordance with the FRF. Of course, we are following the FRF. Whatever the financial statements we are preparing it as per the applicable financial reporting framework, right? So, whatever accounting policy, whatever changes are there in the accounting policies, that should be properly accounted for, that should be properly presented, and that should be properly disclosed. So, what are the two things that you need to apply in the accounting policies? Point. So the first thing is कि they should be consistently applied, no doubt. अब उसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो that should be APD, accounted, presented, disclosed in accordance with what? In accordance with the applicable FRF. So I hope this is clear now. ठीक है, अब ये जो हमारे पास है, this is the one question which was related to your this was related to your SA 510, जो कि RTP में पूछा है। बट ऐसा नहीं है कि RTP में अगर 510 पूछा है जनवरी में तो दे विल आस्क ओनली यू द ऑब्जेक्टिव ओनली, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा। दे कैन आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम SA 510, सो आई कैन हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। कि यहाँ पे देखो, इफ यू कैन सी हेयर, सो दिस इज द एग्जैक्ट एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब उसके बाद जब आपको, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन अगर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, अब ऑडिटर का क्या पर्पस है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर है कि ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि उसको SAAE लेना है, लेकिन उसको SAAE क्या क्या लेने हैं फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस, दैट ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन विच दे कैन आस्क इजिली फ्रॉम SA 510। इट इज नॉट कि आपने सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव याद कर लिया, आपका SA 510 हो गया। नो, आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना। सो द फर्स्ट थिंग इज कि पहला आपने किसके रिलेटेड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लिए हैं, इफ यू आर द ऑडिटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। इफ यू आर द ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी एंड आपको पता है कि पिछले साल हमारा कोई भी ऑडिट नहीं हुआ एंड यू आर द फर्स्ट वन हु विल बी डूइंग द ऑडिट ऑफ दिस ईयर, तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे, पहली चीज हमने ये देखनी कि हमारा जो लास्ट ईयर का बैलेंसेस है, हर चीज हमारे पास उसकी ओपनिंग बैलेंस बनती है। फॉर एग्जाम्पल 2025 31 मार्च 2025 का जो भी बैलेंस होगा वो जो हमारे पास 1 अप्रैल 2026 का बैलेंस होगा। तो जितने भी हमारे पास बैलेंसेस हैं 31 मार्च 2025 के, वो अप्रोप्रिएटली आए हैं या नहीं है, दिस इज द फर्स्ट चेक दैट यू विल बी डूइंग। ठीक है, जब आप यही तो आप एविडेंस ढूंढोगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज डिटरमाइन करो वेदर द प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड इन द करंट पीरियड। सो फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपने ये चीज देखनी है कि जो भी आपका, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, जो आपको SAAE लेने हैं
उसमें जो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस होते हैं वो आपके ढंग से आए हैं या नहीं आए, किसमें, करंट ईयर में, करेक्टली इन द करंट ईयर। अब और दिस इज अगेन और अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स हमारे पास हुई हैं, तो जब हम कोई भी एस पढ़ते हैं, प्रायर पीरियड का पढ़ते हैं, तो जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट्स हुई होती हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली प्रायर पीरियड आइटम दिखाते हैं इन द करंट ईयर पी एंड एल स्टेटमेंट। कुछ याद आ रहा है कि हम पहला हमारे पास एविडेंस का पॉइंट है कि आपने देखना है कि प्रायर पीरियड के सारे बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड हो गए हैं करंट ईयर में। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस। और अब इसका सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, अगर कोई एडजस्टमेंट आ रही है तो हम उसको पी एंड एल में क्या दिखा सकते हैं, एज अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या कहता है, अगेन जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि हमारे पास जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, दे शुड बी प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, दे शुड बी प्रॉपरली अप्लाइड, कंसिस्टेंटली अप्लाइड। तो इन द सिमिलर वे हमें ये देखना है कि जितनी भी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, वो जितने भी हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं उसमें हमारी प्रॉपरली अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लोजिंग बैलेंस की कोई भी एक हमारे पास अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हमने इसको एनआरवी पे दिखाना है, हमने इसको कॉस्ट पे दिखाना है, सो दिस इज द पॉलिसी। तो इस जितनी भी हमारे पास पॉलिसीज हैं, जितने भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं, क्या वो उन पॉलिसीज को अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या हमारा सीओजीएस उसको एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है, क्लोजिंग बैलेंस उसको एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता। तो आपने दिखाना है कि डिटरमाइन वेदर द ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड। आपको समझ में आ रहा है क्या एंड क्या और। अगर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जहां पे हमने ये देखना है कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस करेक्टली आ रहे हैं, तो वो तो चीज है, वो फर्स्ट चीज। और या फिर अगर उसी में ही एडजस्टमेंट है तो हमने उसको एज अ प्रायर पीरियड आइटम दिखाना है। सेकेंड चीज हमारे पास ये आ रही है कि हमने ये देखना है कि जितने भी ओपनिंग बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएटली प्रॉपरली अकाउंटिंग पॉलिसीज को। और आपने अब एक चीज और देखनी है कि आपको ना परफॉर्म करने हैं प्रोसीजर्स। अब किस तरीके के प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करने हैं। अब दो केसेस होते हैं। पहला केस हमारे पास है, मैंने आपको क्वेश्चन जब पढ़ा था तो मैंने आपको दो चीज बताई थी कि पहला हमारा केस है कि हमारे पास ऑडिट हुआ है, दूसरा हमारा केस है कि हमारे पास ऑडिट नहीं हुआ। अगर हमारे पास ऑडिट हुआ है तो आप उसकी कॉपीज ले लो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इज इट क्लियर। तो व्हेन द वेयर द प्रायर year financial statements were audited, तो pursuing the copies of audited financial statements या फिर other relevant document related to the prior period financial item। तो अगर आपने ऑडिट किया तो आप उनकी कॉपीज ले लो। और अगर आपने ऑडिट कर लिया और जो भी आप करंट ईयर के प्रोसीजर करोगे परफॉर्म, तो उससे आपको प्रायर पीरियड का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने डेटर का देखा, तो अगर हम डेटर का इस साल का क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कुछ रिकवरीज भी हो गई हैं। अब हमारे पास जो रिकवरीज है वो कहाँ से वो होंगी, हमारे पास अगर कुछ पुराने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है और आज हमने उनको उसमें से कुछ रिकवरी हो गई है, तो जो भी हमारे पास रिकवरी हुई है वो पिछले साल से हो रही है, तभी तो हमारा लास्ट ईयर में उसका बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा था ना लास्ट ईयर के फाइनेंशियल में। तो जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में ठीक है जो हमारा इतना बन के आ रहा था, क्योंकि उसके बाद हमारी रिकवरी हो गई है, वो रिकवरी भी हमारे लास्ट ईयर में रिफ्लेक्ट हो रही थी। Are you getting the point? So evaluating whether the current audit procedure, the procedure performed in the current year, provide the evidence to the relevant year प्रायर बैलेंस। तो अगर हमारे पास डेटर की कुछ भी रिकवरीज हुई है तो वो रिकवरीज कहाँ से होंगे, क्योंकि इस साल कभी हमने बैड डेट्स नहीं डाला, इस साल कभी हमने प्रोविजन नहीं डाला, तो जो लास्ट ईयर के हमने प्रोविजन क्रिएट करा था बैड डेट्स के लिए, वो हमारी लास्ट ईयर से रिकवरी हुई है। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, बैक कैलकुलेशन करेंगे, तो देन वी विल रीच टू द बैलेंस विच इज रिलेटेड टू द प्रायर पीरियड ओनली। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ठीक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इतना था। आर यू गेटिंग द पॉइंट। फिर हमारे पास कुछ कुछ केसेस में स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी बैंक कंफर्मेशन है, यू टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल द बैंक अकाउंट्स, ठीक है, फॉर ऑल द बैंक अकाउंट्स। या कभी कभी आप 100% कंफर्मेशन नहीं लेते, कभी कभी आप थोड़ी बहुत कंफर्मेशन लेते हो, एंड इफ यू आर अवेयर कि लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ, ठीक है, तो जब आप कंफर्मेशन ले रहे हो इस साल 31 मार्च 2026, जो हमारे पास अभी जो चल रहा है दैट इज 31 मार्च 2025 का जो बैलेंस है उसकी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आई थी,
तो जब ये वाला ईयर क्लोज होगा, जब 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 का जो ईयर क्लोज होगा, तो उसमें जो बैलेंसेस बैंक बैलेंस आएंगे, जब आप उनकी कंफर्मेशन भेजोगे तो आप ये बोलोगे कि मुझे पुराने साल की भी कंफर्मेशन दे दो. तो देन यू आर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड टू द फ्यू balances. So performing the specific audit procedures regarding the opening balance also. So these are the three things that you can do when you are obtaining the sufficient and appropriate audit evidences. तो first is, पहले आपने ये देखना है कि जो भी prior period के balances हैं they properly आए हैं in the current year, और अगर कोई भी adjustments थी तो वो as a prior period item आई हैं. Is it okay? फिर आपने देखना है कि opening balance reflect करते हैं किस चीज को, appropriate accounting policies को. फिर आप एक और 3 चीजें और परफॉर्म कर सकते हो. पहला आप ये देख सकते हो कि अगर आपका ऑडिटेड था तो वो कॉपीज ले लो, या फिर आप करंट ईयर में कुछ ऐसे प्रोसीजर फॉलो कर लो जिससे आपको कंफर्ट आ जाए प्रायर पीरियड की ओपनिंग बैलेंस का, या फिर आप कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बैंक कंफर्मेशन का लिया था. अगर आपको लगता है कि यार कुछ भी हमारे पास ऐसे एविडेंसेस आए हैं जिससे हमको फर्क पड़ रहा है कि ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट थी, तो आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो. और उसके बाद आप वो सारी चीजें क्या कर दो, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को आप क्या कर दो, कम्युनिकेट कर दो. तो अगर आपके पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस में ऐसा बैलेंस आए जिससे आपको लगता है कि इसे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट आ सकता है, देन यू शुड परफॉर्म द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स. एंड जब वो करेंगे तो उसको आप कम्युनिकेट कर दो किसको, TCWG को. समझ में आया? तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ इसका एक और क्वेश्चन भी करा दिया जिसमें आपने जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस जो हमारे पास हैं वो आपने ले लिए. समझ में आया या नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो दिस वाज रिलेटेड टू SA 510. अब ये वाला जो क्वेश्चन था ऑडिट एविडेंसेस का, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. रिस्क असेसमेंट का मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था जिसमें आपको कंसेप्ट बताना था मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, विच वाज ऑलरेडी कवर्ड बाय अस. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, अगर मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे आती हूँ, तो दिस वी विल कवर टुमारो 14th वाला. So FSY and company chartered accountant completed the stat audit of Himmat Limited for the year ended this. The audit partner instructed the audit team to finalize and assemble the audit documentation immediately after signing the auditor's report on 15 September 2025. तो ना जब आप ये सब चीजें पढ़ रहे हो ना, तो you should get a fair idea कि ये सब किससे रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड टू द असेंबली, और आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम में आपका असेंबली हो जाना चाहिए, 60 days आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है. However, audit team took this instruction lightly and forgot to assemble the audit documentation. After 6 months, audit team started assembling and completed the documentation. When audit partner became aware of this, he called a meeting of staff and discussed the policies and procedures for the timely completion of the audit, file changes to this and period of retention. तो यहाँ से ना आपका क्वेश्चन बनता है कि जब मीटिंग हुई थी, जब ऑडिट पार्टनर को इन चीज का पता चला था, तो व्हाट दे हैव डिस्कस्ड द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट फाइल्स, तो विच इज 60 days. चेंजेस आप कौन कौन से कर सकते हो, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस होते हैं, ओनली दैट यू कैन परफॉर्म. एंड पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विच इज 7 years. तो एक्सप्लेन द वेरियस पॉइंट डिस्कस बाय द ऑडिट पार्टनर विद रेफरेंस टू द रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. तो इसमें 3 points है विच यू नीड टू डिस्कस, राइट. तो इसमें आपको पहला देखना है कि SA 230 है, ठीक है, विच इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. बट हेयर यू डू नॉट नीड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ SA 230, बिकॉज माना कि SA 230 है, बट दैट डजंट मीन कि आप इसमें SA 230 का डेफिनेशन लिख दोगे. SA 230 का कौन सा प्रोविजन असेंबली से रिलेटेड है, यू नीड टू राइट दैट. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the audit file on a timely basis after the date of the auditor's report. तो वो जो ऑडिटर रिपोर्ट की जो डेट है, दैट इज नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट थिंग इज द टाइम लिमिट दैट यू नीड टू मेंशन. उसके बाद अगर आपने कोई भी चेंजेस करने हैं आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, सो दैट शुड बी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड दैट डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ एनी न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स और ड्रॉइंग द न्यू कंक्लूजंस. आर यू क्लियर?
फिर हमारे पास आ रहा है कि अगर आपके पास चेंजेस हैं तो वो किस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं. सो दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ऑफ द चेंजेस आपने लिख देने हैं कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है वो डिलीट करना है, या आपने कुछ कोलेट करना है, कोलेट मतलब इकट्ठा करना है, सॉर्ट करना है, क्रॉस रेफरेंसिंग करनी है, साइन ऑफ करनी है. तो इस तरीके के आप चेंजेस कर सकते हो. उसके अलावा आप कोई भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सकते हो. तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि जितने भी आपके पास चेंजेस हुए हैं या जितने भी आपके पास ऑडिट फाइल कंप्लीट हो गया उसके बाद वो कोई भी चीज डिलीट और डिस्कार्ड नहीं करेगा जब तक आपका एंड नहीं आ जाता रिटेंशन का. ठीक है. तो रिटेंशन का नॉट शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट और इफ लेटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट. दिस इज ऑल्सो very important that you need to write both the things, that from the date of the auditor's report or if later the date of the group auditor's report. तो आपको समझ में आया कि आपको इस आंसर को कैसे अप्रोच करना है. You can not just write only one provision related to the completion of the audit file. अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि उसकी जो भी मीटिंग हुई थी उसमें उसने 3 चीजें डिस्कस करी है. पहली चीज जो उसने डिस्कस करी है वो कंप्लीशन से रिलेटेड की पॉलिसीज, दूसरी चीज उसने चेंजेस और तीसरी चीज उसने रिटेंशन. तो देर इज अ वेटेज ऑफ 3 topics in this question and you need to write all the 3 the topics which the question has asked in your exam. So first thing is what 230 says with respect to the policies and the procedure. What should be the time limit, and that should be after the date of the auditor's report. I have checked one of the answer sheet in which it was written that 60 days of the auditor's report, but not 60 days of the auditor's report, 60 days after the date of the auditor's report. Fine. And उसके बाद आपने जितने भी changes करने हैं आपने वो सब लिखने हैं. And last में आपने करना है कि जितना भी आपके पास retention है period है उसके बाद आप कुछ भी नहीं discard और delete कर सकते हो. जो period है that is for the period of the 7 years from the date of what, from the date of the auditor's report or after the date of the group auditor report. Is it clear to all of you now? So this is how you need to approach the answer, because RTP tough नहीं है. RTP लोग करते ही नहीं है क्योंकि RTP बहुत tough है, फिर confidence नहीं आता, फिर पेपर में confidence lose हो जाता है. But RTP is not tough, that tough. अगर आप daily RTP cover करोगे तो वो धीरे धीरे हो जाएगा. I promise you that I will bring more questions like this. If you want me to discuss the MCQs also, I will discuss that also. Please write back in the comment box what kind of the guidance, what kind of the help you need. If it is related to test series, if it is related to questions, if it is related to the MCQ, then I will come up with the videos accordingly. Okay. So thank you so much everyone, and all the best to each and every student who is appearing for the May 26 exams. Thank you so much and bye bye everyone.